Bismillahirrahmanirrahim. I start with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। Hi everyone, I hope you are fine and doing well. Today the topic is related to matrices, but subtopic is multiplicative inverse of a matrix. So let's start. Come learn matrices with me. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा टॉपिक मैट्रिस से रिलेटेड है। मैट्रिसेस में जो इसका सब टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कि किस तरह हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। Viewers, I am a great fond of mind maps, and now in front of you there is a mind map. The first thing in this mind map is that we have to do is finding the determinant function. It is given like this. Then evaluate determinant of a matrix, followed by singular and non-singular matrices. How to find the singular and non-singular matrix, then how to find adjoint of a matrix, and the last thing is finding multiplicative inverse. So this is step-by-step process. The first step is finding determinant. So keep the function in the bar form, remove matrices like rectangular side brackets, remove it and replace it by the bars, and the diagonal is AD. First diagonal on the left hand side is AD, so AD will come first, then subtraction sign, then BC. So it will keep the same order, it will not revert. You cannot write BC first and AD after that. First you have to write AD, then minus, then BC. After that you need to find out the value of the matrix, the determinant value. If the value is equals to 0, it means it is singular, and if it is not 0, means not equal to 0, then it is non-singular. After that we need to find out the adjoint. Adjoint is entirely different from the determinant. How? We keep members A, B, C, D. This is matrix A. So whenever we find out the adjoint of A, this diagonal on the left hand side, that is AD, you will replace the values, like A will replace by D and D will replace by A. And on the right hand side, the diagonal the members will change the sign. If it has already negative sign, then what you will do, you will change into positive. If there is no sign, it is already understood that there will be positive sign and it will change into negative. The last step is you need to write the formula. A inverse is equals to adjoint A over A determinant. हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना, और इसके लिए माइंड मैप्स बड़े हेल्पफुल होते हैं। और ये आपके सामने इस स्लाइड पे माइंड मैप एक शो किया गया है कि पहला स्टेप क्या है, और फिर उसको फॉलो करते हुए दूसरा स्टेप क्या है, फिर तीसरा क्या है, फिर चौथा क्या और लास्ट वन क्या है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जर्नी जो है, आपने स्लाइड पर अगर टॉपिक देखा है तो उस टॉपिक से आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें सबसे पहले जो जर्नी स्टार्ट होता है डिटर्मिनेंट फंक्शन से। और डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? डिटर्मिनेंट में हम मैट्रिसेस की जो बार साइड पे ब्रैकेट्स होती हैं उनकी शेप को चेंज करते हैं और बार फॉर्म में लेके आते हैं। और फिर पहले जो आपके मेंबर्स हैं AD, जो फर्स्ट आपके लेफ्ट साइड पे डायगोनल आता है, उसके AD मेंबर्स हैं, उसको पहले लिखते हैं सब्ट्रैक्शन, एंड देन उसके बाद BC आता है।
दूसरे स्टेप में हमारे पास उसको फाइंड करते हैं, इवेलुएट करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर वैल्यू तीसरे स्टेप में अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो वो सिंगुलर हो जाती है और वहाँ पे हमारा क्वेश्चन, इट मीन्स कि सिंगुलर का मतलब ये कि आगे हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो नॉन सिंगुलर आ जाती है, मतलब 0 के अलावा कोई और नंबर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, 0 के अलावा कोई और नंबर हो इंटीजर्स में से वो आ जाए, तो फिर हम आगे स्टेप करते हैं एडजॉइंट फाइंड करने का। जो एडजॉइंट फाइंड करते हैं, एडजॉइंट में हमारे पास हम जॉइंट्स लगा रहे होते हैं। जैसे ए और डी जो फर्स्ट हमारे पास डायगोनल आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, उनके मेंबर्स की प्लेसमेंट चेंज कर देते हैं। ए डी चेंज करता है डी ए से प्लेस कर देता है, और दूसरे डायगोनल जो राइट हैंड साइड पे है यानी बी और सी, वो अपने साइन चेंज करते हैं। अगर किसी नंबर के साथ नेगेटिव साइन पहले से है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव ऑलरेडी है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। लास्ट में हम ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखते हैं और उसको इक्वल करते हैं डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ये सब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू होता है। In front of you, these are the important points and you need to remember that. The first one is inverse of a square matrix. A is denoted by A inverse or A, and there is a minus sign on the top right. Then only non-singular matrices have inverses. Then matrix A, B, C, D has the inverse O, that is 1 over AD minus BC. AD minus BC is the determinant and D minus B minus CA is the adjoint, provided AD minus BC is not equal to 0. The third thing is inverse of a square matrix A is always unique. The fourth thing is non-square matrices cannot possess inverses. Number 5 is multiplicative inverse is equals to A in minus 1, that is adjoint A over A determinant. So it is the repetition of the second point. लेकिन कुछ चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप है कि ए इनवर्स को कैसे शो किया जाता है, डिनोट किया जाता है। फिर नंबर 2 में उन्होंने बताया कि उसका फॉर्मूला अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाती है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास कैसे होगा, हम फाइंड आउट करेंगे जबकि जो ए डी माइनस बी सी नहीं है बराबर 0 के। तीसरे पॉइंट में उन्होंने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो हमेशा एक यूनिक नंबर होता है, यानी आखिर में जो उसका आंसर निकलता है वो दूसरे से डिफरेंट होगा तो यूनिक ही कहलाएगा। फोर्थ थिंग में उसमें उन्होंने क्या बताया कि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स वो इनवर्स नहीं पोजेस करती, यानी कि अब नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस का आप नहीं कर सकते, इनवर्स नहीं ले सकते। और जो लास्ट थिंग है उसमें उन्होंने रिप्रेजेंट किया है फॉर्मूले को कि ए इनवर्स जो है इक्वल है एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए के। तो ये इसी तरह का यही पॉइंट जो है वो सेकंड पॉइंट में भी बताया गया है, लेकिन वर्ड्स में है और यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला की फॉर्म में शो कर दिया है। Now you can see exercise 6.5. This exercise has been taken from the book Journal Mathematics Grade 10th, and this book has been selected and distributed by the Government of Punjab, Pakistan for the academic year 2020-21. In the first question, we have to find the determinants, and for finding the determinants, the most important thing is to keep the values in bars. Like you can see, A is in the form of bars, and the elements are there are bars. So this is the easiest question. U multiply by y minus x multiply by v. Similarly, in the second part, we have to find -2 multiplied by 4, that gives you -8.
and 5 multiplied by 1 is equals to 5, there will be a minus sign, and minus will become plus, there will be negative 13. जनरल मैथमेटिक्स के लिए 10 की है, और ये बुक जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सिलेक्ट की है 2020 एंड 21 के लिए। इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है, और डिटर्मिनेंट्स में आपको पता है कि बार्स पहले बार्स की फॉर्म में हम लिखते हैं, यानी हम रिमूव करते हैं मैट्रिक्स का साइन और हम उसकी जगह पर बार्स ऐड करते हैं, फिर उसके बाद उनको हम मल्टीप्लाई स्पेसिफिकली करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं दूसरे वाले नंबर से जो कि आपके पास दूसरे डायगोनल में होता है, और आंसर आपके पास आता है। जैसे कि u मल्टीप्लाई बाय वाई हुआ और x मल्टीप्लाई बाय वी हुआ है माइनस साइन के साथ। इसी तरह क्वेश्चन 2 में भी -2 ज़रब दिया गया है 4 से, और एक जो ज़रब दिया गया -5 से। सो -8 और -5 को ऐड करेंगे तो -13 आ जाएगा। Now from the heading you can understand this question is related to singular and non-singular matrix. So this is identify singular and non-singular matrices. For this the question is given, we need to find out, put the matrix A in the form of bars and then multiply and then find the value. If it is 0 then it is singular, if it is not equal to 0 then it is non-singular. जैसा कि इसके टाइटल से हेडिंग से ही पता चल गया कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में बताना है मैट्रिक्स में, और आइडेंटिफाई करना है, यानी कि वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करके चेक करनी है कि क्या आंसर 0 आता है। अगर 0 आता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर 0 नहीं आता तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व हुए, आप इजीली इसको देख सकते हैं। Now in the question there is A inverse A is equals to identity, means we need to show that A inverse A when multiplied by A gives you identity. Okay, identity matrix is equals to 1 0 0 1, that is in the form of in the order of 2 cross 2, mean 2 rows and 2 columns. So we will stick with the 2 rows 2 columns identity matrix. In the question first we need to find out the determinant. When we find out the determinant we come to know that is it is equals to -1. After that the second is adjoint. So for adjoint we have to replace the values of the first diagonal on the left hand side, then change the signs on the right hand side diagonal. Then the third step or is A inverse is equals to keep the values in the formula, and when you get the answer of A inverse, that is 3 -2 -1 and 1, we need to multiply by A matrix. In the A matrix this step involves multiplication of the matrices. Both matrices has the order 2 cross 2, 2 rows and 2 columns. So we can easily multiply first matrix A inverse matrix with A. For multiplication we know that first row will be multiplied by first column, and when we are moving towards second column of the second matrix we will start immediately with the second column. Second row, first row, second column. Then we are done with the first row. Start with the second row, first column, and second row, second column. Now you can see here the easily multiplication is done, and after multiplication we simplify, solve, and then when we get the answer we are feeling that there is, when we subtract
3 minus 2 from 3, 6 minus 6, minus 1 plus 1, minus 2 plus 3. They are giving us the value 1001, that is equals to identity. So it is proved now that A inverse A is equals to identity. A मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। आइडेंटिटी क्या चीज़ है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर हमारे पास 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो हमें हमारे पास किस तरह की फॉर्म रहेगा? 1 then 0 0 and 1। यानी हमने मल्टीप्लाई जब हम करेंगे ए इनवर्स को ए से, तो हमारे पास आंसर ये आना चाहिए। अब इसके लिए सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आगे हमारे पास 3 स्टेप्स में ए इनवर्स फाइंड होगा। पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इवेलुएट करेंगे। अगर वो इक्वल्स टू 0 आ जाती है तो हमारा आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर वो आंसर उसका नॉन ज़ीरो आता है, जैसे कि यहाँ पे -1 आया है, और आगे हम उसको सॉल्व करेंगे। फिर एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट भी स्पेसिफिकली हम करते हैं कि एक तरफ से हम नंबर्स को रिप्लेस करते हैं और एक तरफ से हम साइंस को रिप्लेस करते हैं। ये मैंने आपको बताया है। पहला डायगोनल जो होगा वो प्लेसमेंट चेंज करेगा, जगह की तब्दीली होगी। ए और बी मतलब जो भी एलिमेंट है, नंबर आपके पास मेंशन है, इसी तरह उन्होंने चेंज कर दिया और दूसरे के साइन चेंज हो गए। उसके बाद उसको फॉर्मूले में हम ए इनवर्स के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जब डालेंगे और मल्टीप्लाई करके आंसर हमारे पास जो आएगा वो आ रहा है 3 minus 2 minus 1 and 1। फिर अब हम उसको लास्ट स्टेप पे मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई होता है तो हमें चेक करना होता है कि ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस का सेम हो, और उसके लिए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है दोनों का। अब हम क्या करेंगे? वो रूल अप्लाई करेंगे जो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस के लिए यूज़ होता है। जैसे फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। जब सेकंड कॉलम की तरफ मूव करते हैं हम, तो हमारा सेकंड कॉलम में हम उसको लिखेंगे। फिर फर्स्ट रो का अपना काम ख़त्म कर दिया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इनको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आता है 1001, जो कि आइडेंटिटी के इक्वल है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है कि जो हिंदी में प्रूव करने के लिए दिया था वो एक्चुअल में सही है। There are 2 questions on this slide. First is question 3 and the other one is 4. So we have seen that a determinant if is equals to 0, then inverse does not exist. In question number 4, we need to find out 2 things. First is finding m inverse and then verify m inverse multiplied by m on the left hand side is equals to m multiplied by m inverse on right hand side. So this is we can divide this question on left hand side and right hand side. First we will find out m inverse. For finding n inverse, there are some specific steps. First finding the determinant and then finding adjoint. Means m inverse is finding m inverse is followed by finding determinant and adjoint. आंसर हमारे पास 0 आया, तो ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया कि अगर आंसर 0 होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, तो
आगे इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड लिखते हैं, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन 4 में हमारे पास आता है एम मैट्रिक्स, और एम मैट्रिक्स में फाइंड करना है फर्स्ट स्टेप में एम इन्वर्स, और फिर दूसरे में उसको वेरीफाई करना है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे एम इन्वर्स को एम से मल्टीप्लाई करें और वो इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड पे एम मल्टीप्लाई बाय एम इन्वर्स। तो पहले तो एम इन्वर्स फाइंड करेंगे। एम इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड करना और एडजॉइंट फाइंड करना ज़रूरी होता है। Now this is the continuation of the previous slide. Question 4, then find m inverse. When we find out the m inverse, it is equals to minus 4, 1, 3 by 2, minus 1 over 2. Now the second one part is finding or multiplying m inverse by m. Then multiply it. When you multiply it, it is a long process. Long process means it needs time. So minus 2 multiplied by first row first column, it will be minus 2 multiplied by 1 plus 1 multiplied by 3. Okay. Then second column, first row second column, minus 2 multiplied by 2 plus 1 multiplied by 4. Now we are done with the first row. Come to the second row. 3 over 2 multiplied by 1 plus minus 1 over 2 multiplied by 3. Then second row second column, 3 by 2 multiplied by 2 plus minus 1 over 2 multiplied by 4. Now after that we are solving minus 2 plus 3, then minus 4 plus 4, plus 3 by 2 minus 3 by 2 plus 3 minus 2. Now we are getting answer 1 0 0 1. This is identity matrix. Now keep it as 1, equation 1. Come to the right hand side. In the right hand side, first write m matrix, then write m inverse matrix. Okay, so it is important to follow the step that is written in the question. No need to follow. For most of the students, what they do, they keep m inverse m and the same value. No, if it m is coming first and m inverse is coming is written later, so you have to write according to the written form, that is m inverse. That first write m matrix, then m inverse matrix. Multiply first row with first column, 1 multiplied by minus 2 plus 2 multiplied by 3 by 2. Then first row second column, 1 multiplied by 1 plus 2 multiplied by minus 1 by 2. Now come to the second row first column, 3 multiplied by minus 2 plus 4 multiplied by 3 by 2. Now second row second column, 3 multiplied by 1 plus 4 multiplied by minus 1 over 2. Solve this. After solving this, we get values minus 2 plus 3, 1 minus 1, minus 3 plus 6, minus 6 plus 6, 3 minus 2, and we are getting value 1 0 0 1. So it is proved left hand side is equals to right hand side. मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो करेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, फिर इसी तरह सेकंड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। इस तरह वैल्यू जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिलेशन होगी, कैंसिलेशन होने के बाद हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं 1 0 0 1, यानी एक साइड हमने कर ली जो कि लेफ्ट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड पे m इनवर्स लिखा हुआ है, उसमें आपने फर्स्ट पहले मैट्रिक्स m लिखनी है, फिर m इनवर्स मैट्रिक्स लिखनी है और उसके बाद मल्टीप्लाई उसी रूल के बेस पे करना है जो रूल आपको बताया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो क्योंकि पहले राइट हैंड साइड मालूम कर चुके होते हैं, तो वो कहते हैं ये मल्टीप्लाई करने की हमें क्या ज़रूरत है, हम m पहले क्यों रखें और m इन्वर्स बाद में क्यों रखें, और दोनों का मतलब तो यही है। लेकिन नहीं, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे भी आपको दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड जैसे लिखी गई है उसको एज इट इज़ लिखना और उसको ऐसे ही सॉल्व करना, और फिर राइट हैंड साइड एज जैसे बताई गई है वैसे ही लिखनी है, और वैसे ही मैट्रिसेस का ऑर्डर होगा, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन होगी। यानी दोनों साइड्स पर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ एक साथ जाएगी, तब जाके हमारे पास बेशक आंसर एक जैसा आ रहा हो, लेकिन हमने उस चीज़ को फॉलो करना है। और फिर हमारे पास जब सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है 1001। इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड में भी 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही थी और लेफ्ट हैंड साइड में भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। तो हमारा जो वेरीफाई करने के लिए आंसर दिया गया था वो सही है। पिछले क्वेश्चन से एंटायरली डिफरेंट है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करने के लिए ए बी मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाता है। और जब आंसर आता है ए बी का तो फिर इन्वर्स लेना है। इन्वर्स के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट का होना ज़रूरी है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे ए बी का, और फिर ए बी मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट आया उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, उसी का एडजॉइंट लेंगे। ये आप नेक्स्ट स्लाइड्स में देख सकेंगे। Now here you can see that we need to find out or verify AB means product of AB, and then after finding product we need to find out the inverse of AB. This is the left hand side of the question, and the right hand side involves minus B inverse or inverse of B multiplied by inverse of A. So for finding AB, first find the left hand side, means multiply A with B matrix, first row first column, first row second column, second row first column, second row second column. You get the answer 26, 8, 11 and 3. So find out the AB inverse. For finding out the AB inverse, it is followed by the step related to finding out the determinant and adjoint. Finding of determinant AB and finding of adjoint of AB. After finding adjoint, we have to write AB inverse is equals to the determinant 1 over A determinant multiplied by adjoint A, and you see that this is in the form of minus 3 over 10 plus 11 over 10, 5 over 5 and 13 over 5. Now we need to find out the right hand side. It contains B inverse and A inverse. It means A matrix will find the inverse of by solving the determinant and adjoint. B inverse individually finding out its own determinant and adjoint. And now you see there is adjoint of A and inverse of A is equals to 1 minus 2 and 5, and similarly B inverse is equals to 1 over 10 and 1 over 5, 3 over 10 and minus 2 over 5. Now you need to multiply B inverse A inverse after finding the values. Keep first B inverse matrix and then A inverse matrix.
ए बी आएगा। ए बी एडजॉइंट जब फाइंड करेंगे तो वैल्यूज हमारे पास 3, -8, -11, 26। फिर उसको हम फाइंड आउट करेंगे इन्वर्स। जब इन्वर्स करेंगे तो -3/10 प्लस 11/10, 5/5, 13/5 आएगा। ये राइट हैंड साइड है। जब लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए डिटर्मिनेंट सेपरेटली फाइंड आउट होगा और बी डिटर्मिनेंट सेपरेटली फाइंड आउट होगा। यानी सेपरेट अलग अलग से ए का भी डिटर्मिनेंट लेंगे, बी का भी लेंगे, ए का एडजॉइंट लेंगे, बी का भी एडजॉइंट लेंगे। जब दोनों डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट्स आ जाएंगे तो इनका इन्वर्स में एक फॉर्मूले में पुट करेंगे और इसी तरह हमारे पास एडजॉइंट के लिए ए बी आएगा। ए बी एडजॉइंट जब फाइंड करेंगे तो वैल्यूज हमारे पास 3, -8, -11, 26। फिर उसको हम फाइंड आउट करेंगे इन्वर्स। जब इन्वर्स करेंगे तो -3/10 प्लस 11/10, 5/5, 13/5 आएगा। ये राइट हैंड साइड है। जब लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए डिटर्मिनेंट सेपरेटली फाइंड आउट होगा और बी डिटर्मिनेंट सेपरेटली फाइंड आउट होगा। यानी सेपरेट अलग अलग से ए का भी डिटर्मिनेंट लेंगे, बी का भी लेंगे, ए का एडजॉइंट This is the last slide and you see the multiplication. When we multiply and we are getting the answers, and the answers are in the form of fractions. For the fractions, for the solution of the fractions, we need to find out the LCM, and you see LCM. For LCM we will see the denominators, and you know how to find out the LCM from the denominators. First we will divide the LCM with the denominator, and when we get the answer, multiply by the numerator number. So these are the steps, and after finding these steps we are getting the value -3/10, 4/5, 11/10 and -13/5. So it is proved the left hand side is equals to right hand side. फ्रैक्शंस आ गए हैं, जब फ्रैक्शंस आ जाए तो मल्टीप्लाई करना और उसका आंसर निकालना इतना आसान नहीं होता, और सबके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम जब आता है तो उसको हम हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको सॉल्व करके शो कर रही हूँ सामने, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे इसको हमने सॉल्व करना है। और फिर उसके बाद हमारे पास एंड में आंसर आ जाता है जो कि मैच करता है राइट हैंड साइड से -3/10, 4/5, 11/10, -13/5। सो ये क्वेश्चन इस तरह से प्रूव हो गया है। Thank you so much all viewers. I hope this topic will help you
in understanding different concepts, and the solutions will help you to understand how to solve different questions. I'll come with another topic, another exercise. Till then, I'm saying goodbye. If you like, then subscribe my channel. Thank you once again. उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक और ये क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके फ्यूचर में आपकी हेल्प करेगा। कमेंट्स और लाइक्स के लिए आप, और कोई ऐसी चीज़ जो आपको डिफ़िकल्ट लगती है उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर किसी और नए टॉपिक के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।